Good morning, students. This is radiation lecture number 4. Actually, lecture number 3 because in lecture number 1, only a half an hour we did radiation. We were finishing the previous chapter. Now, in the previous class, we discussed Stephen's law, and Wien's law is already known to us. So, just quick recap only of the formulae. What is Wien's displacement law? Wien's displacement law says that lambda maximum is equal to b by t. Yes or no? Where b is Wien's constant, it is 2.9 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin, and therefore we get the product lambda 1 T1 is matching with lambda 2 T2. Yes or no? And thereafter we had Stephen's law. So what is Stephen's law? अगर एक ही लाइन में बेटा पूरा का पूरा Stephen's law लिखना है तो very simple. Q is equal to E times sigma times A times T times T raised to 4 minus T0 raised to 4. इसमें से जो भी डेटा वो लोग नहीं देते हैं, मान लो E नहीं दिया, क्वेश्चन में E दिया ही नहीं, that means they are talking about perfectly black body because A will be 1, E will be 1. If they don't give area, that means they are talking about per unit area. If they don't give time, that means they are talking about per unit time. Yes or no? Most of the times they don't give surrounding temperature, most of the times, because usually the questions are related to stars. So when a star is emitting heat, that heat radiation is traveling in universe to infinite space. But if I set a problem for a closed boundary like this room, for example, okay, there is a black body hanging which is hot, and all the walls are painted black, the ceiling is painted black, the floor is painted black. That means it gives by Stephen's law, it takes also by Stephen's law. In that case, they give you surrounding temperature. So when they don't give you surrounding temperature, don't take it. Right? And when they don't give sigma, right? When they don't give sigma, it's a standard value 5.67 into 10 raised to minus 8 SI units. Yes or no? Kirchhoff's law was very simple. A is equal to E. So now beta 1 by 1. ये आपका होमवर्क था. Assignment 2 में question number 16 to 31 they were based on Stephen's law. 31 के बाद में भी स्टीफेंस लॉ के क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो थोड़े लेंथी कैलकुलेशंस है, टफ कैलकुलेशंस है, तो उसको मैंने क्लास वर्क के लिए बाकी रखा था, राइट? उसके बाद में प्रैक्टिस पेपर 1 के ये क्वेश्चंस मैंने दिए थे और प्रैक्टिस पेपर 2 के ये क्वेश्चंस दिए थे. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग अप द डाउट्स, राइट, वन बाय वन. असाइनमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 में किसी को कोई डाउट? असाइनमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 में किसी को कोई डाउट? सिक्सटीन टू 20 पूछा मैंने. हाँ, 19 लाइन से जाते बेटा, लाइन से जाते. 16 to 20 में you have got doubt in 19th question. Okay, 19th question says that which of the following statements is wrong? Stephen's constant is same for all black bodies. True. It's the constant, standard constant. Thermal radiation travels with the speed of light. Yes. Thermal radiations do not exhibit diffraction. बेटा diffraction का मतलब होता है bending at the corners of an obstacle. अगर ये मैं ग्लासेस पहन रहा हूँ, हाँ, ध्यान से देखो, ये ग्लास कॉर्नर से टूटा हुआ है, बराबर ना? सो इन अ वे दिस इज बैड फॉर माय आई. अभी मैं एकदम इधर से सीधा देखूंगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी बुक में देखा मैंने, राइट? तो लाइट इज ट्रैवलिंग टू माय आई थ्रू कॉर्नर विच इज ब्रोकन, राइट? सो इट विल नॉट फॉर्म प्रॉपर इमेज ऑन माय रेटिना. सो डायफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द वे लाइट बेंड्स एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हीट ऑल्सो बेंड्स. So heat radiations do exhibit diffraction. आप लोगों को diffraction word का मतलब नहीं पता है. Diffraction is a full length chapter. तो working space में लिख के रखो. Diffraction means bending of light or heat. Diffraction means bending of light or heat or any electromagnetic radiation. Diffraction means bending of light or heat or any electromagnetic radiation at the corner of an obstacle or a slit.
और अ स्लिट। एक सिंपल चीज बोलता हूँ बेटा, ये तो आप रोज फील करते हो, आप रोज फील करते हो। आप सो के उठे, राइट, तो your eyelids are closed. Now when your eyelids are open, that time surrounding light will start entering your eyelids. लेकिन जब ये open होता है आपको सब blurry blurry दिखता है, rings दिखता है. Then when you do this, and when you do this, you see the circular rings. That phenomenon is diffraction, because this is your eyelids, right? Eyelids were closed. Now when eyelids are just open, this behaves like a slit. So bending of light at the corner of a slit or of an obstacle is called diffraction. And mind you, heat radiations do follow this property. उन्होंने बोला है कि do not, right? तो ऐसा question बेटा थोड़ा नहीं समझा तो it is okay. See, because in a way it is connected to light also. And this part you are going to do in wave optics. Right now your ray optics is started, right? So answer is C. Answer is C. 17th. 17th में बेटा आंसर एकदम परफेक्ट नहीं आ रहा है. 17th में आंसर, इसका सिंपल कैलकुलेशन देता हूं मैं. If the temperature of a black surrounding बोला है clearly is 27 degrees Celsius, then the rates of loss of black heat by a black sphere at 827 and 527. ध्यान से सुनो बेटा. Question number 17 assignment 2. Question number 17 assignment 2. Q1 upon Q2. Should it be T1 raised to 4 upon T2 raised to 4 enough? Answer is no. Because the surrounding also is black, no? So T0 raised to 4, T0 raised to 4. That means this relation. Q is proportional to T raised to 4 minus T0 raised to 4. Please help me with the first temperature. Please help me with the first temperature. 827? 827. That means it is 1100 Kelvin. So 1100 raised to 4. Surrounding temperature कितना है? 300 raised to 4 upon 800 raised to 4 and right. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि this is 11 raised to 4 minus 3 raised to 4 upon 8 raised to 4 minus 3 raised to 4, because 100 raised to 4 will be common and cancel throughout. अभी 11 raised to 4 करते नहीं बैठने का, absolutely no. Look at the simple calculations. A raised to 4 minus B raised to 4 is of the type A square minus B square, A square minus B square and A square plus B square. तो बेटा रेस टू 4 से रेस टू 2 इजी है कि नहीं? And this is 8 square minus 3 square and 8 square plus 3 square. इसका मतलब this is 121 minus 9. This is 121 plus 9. This is 64 minus 9 and this is 64 plus 9. Yes or no? 121 minus 9 is 112. This is 130. Yes or no? This is 64 minus 9. That is 55. And this is 73. Yes or no? तो अभी बेटा आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो. तो इसका जो नियरेस्ट कैंसलेशन के बाद जो एकदम नियरेस्ट आता है वो वाला रेशियो इज योर आंसर. चेक करो कितना आ रहा है. 180. लेकिन वो एग्जैक्ट आ रहा है कैंसिलेशन के बाद? नहीं आ रहा है. हाँ नहीं आ रहा है. तो जब नहीं आता है तो यू हैव टू सिलेक्ट द नियरेस्ट आंसर. करके देखो कितना आ रहा है. दिस इज 11 5 दिस इज 26 5 26 3 78 अप्रोक्सीमेटली, या तो 11 10 yes or approximately 110 approximately. So this is approximately 1 upon 3. 1 upon 3. 26 3s are 78. Right? 3 point something आना चाहिए आंसर. 182 upon 29 कितना हो रहा है? 3.621. कितना आ रहा है एग्जैक्ट? 3.625. हाँ तो ये आंसर 3.629 होना चाहिए. कितना 3.629? हाँ, 3.6. या तो approximately 3.5. हाँ. But definitely 182 upon 29 तो नहीं आ रहा है. Yes sir? Nearest चलेगा. When the answers are not matching, you can select the nearest one. So you can select the nearest one. Now the important heart of this question was when normally students see this step, they are tempted to do 11 raised to 4. Right? 11 11s are 11s are 11s are. That is coming as 14641. Right? 3 raised to 4 is 81. 8 raised to 4 is 2 raised to 12 is 4096. 2 raised to 10 तक याद होना चाहिए बेटा. बाइनरीज बहुत काम में आएगा.
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. 2 raised to 12 तक easily याद रहेगा. So anyways, this was a good doubt. एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा है. This is coming as this, so approximately you can select 4/1 वाला आंसर. तो जो 182:29 दिया वो रॉन्ग आंसर. हो सकता है शायद ओरिजिनल क्वेश्चन में टेम्परेचर 827 के बजाय 927 हो, ऐसा कुछ हो तो पॉसिबल है, हो सकता है. एक भी नंबर का प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ ना, डिजिट का, तो भी आंसर रॉन्ग आ सकता है. सो इट इज नॉट योर फॉल्ट. ऐसा जो भी डाउटफुल लगता है नहीं कि सर ये आंसर मैच नहीं हो रहा है, विदाउट फिल आस्किंग, बिकॉज देन वी कैन सॉल्व एंड क्रॉस वेरीफाई. 17 and 19 डन. स्टीफन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल हीटेड बॉडीज. नहीं, वो ब्लैक बॉडीज होना चाहिए. हाँ, तो वो भी रॉन्ग है. ऑल हीटेड बॉडीज भी रॉन्ग है. सो दो आंसर्स हैं. दिल्ली भी रॉन्ग है. इट इज एप्लीकेबल टू black bodies and usually it is applicable to very hot bodies. When we start with Newton's law of cooling, we are going to see that suppose the temperature of the surrounding is 25 and temperature of the body is 55, 60, 65. Matlab the temperature difference is hardly 30, 35, 40 degrees Celsius. Then we apply Newton's law. And Newton's law is applicable to ordinary bodies. Stephen's law is applicable to black bodies, not necessarily perfectly black. They may be ordinary black also. Emissivity is 0.2, emissivity is 0.35. Lamp black, for example, emissivity is 0.95. Platinum black 0.98. So it may be ordinary black, but they are hot bodies. So answers are C and D both. Answers are C and D both. Question number 21 to 25. Question number 21 to 25. 23. बहुत अच्छा डाउट है, बहुत अच्छा डाउट है बेटा. खोपड़ी मार्क करो. 23 खोपड़ी मार्क करो. Concentrate. 23. A metal ball of surface area 200 square centimeter. If area is 200 square centimeter, students, can I say this is 2 into 10 is to minus 2 square meter. It is 200 into 10 to minus 4. The temperature of the body is 527 degrees Celsius. Temperature of the body is 527 degrees Celsius. That means it is 800 Kelvin. Temperature of the surrounding, please. 300 Kelvin. 27 degrees Celsius, correct? That means 300 Kelvin. 300 Kelvin. Emissivity of the metal is 0.4. मतलब ध्यान से देखो बेटा, ये perfectly black नहीं है. But it is a very hot body, very hot body. Temperature of the body is 527. Then the rate of loss of heat in joule is approximately. उन्होंने एकदम clearly बोला भी है कि approximately. Rate of law of heat मतलब Q by T. Do you agree with me, students? Q by T is equal to E times sigma times A times T raised to 4 minus T0 raised to 4. सब कुछ लिखना पड़ेगा. और मैंने T shift कर दिया because they have asked me rate of law of heat. So what is Q by T? Q by T is equal to emissivity 0.4, 4 by 10, sigma 5.7 into 10 raised to minus 8, round figure लिख रहा हूँ. Area 2 into 10 raised to minus 2, temperature raised to 4, 8 raised to 4, minus 3 raised to 4 into 10 raised to 8. जब भी बेटा ये टेम्परेचर लिखते हो ना, ये स्टाइल में लिखने का हमेशा. एडवांटेज स्टीफन्स कांस्टेंट का तो 10 raised to minus 8 आना ही है. स्टीफन्स कांस्टेंट का तो 10 raised to minus 8 आना ही है. ये वाला, ये 10 raised to plus 8 के साथ कट होगा. Yes or no? So this gives me 2 by 5. Right? 4 by 10 is 2 by 5. This is 5.7. This is 2. This is 10 raised to minus 2. तो उसको मैं अपॉन में 100 लिख लेता हूँ. 8 raised to 4 will be 4096. 8 raised to 4 will be 4096 minus 81. Yes everyone? So this gives me 2 by 5. ये मैं approximately cut कर देता हूँ. Right? So 5.7 is 11.4 upon 10. That means 1.14. 1.14. 4 This difference is 4015 upon 100. Upon 100. तो बेटा ये हो गया approximately 40.15. Approximately 40.15 into this is 4.56. So it is 4.5. 40
44 जा 160, राइट. 40 हाफ जा 20, 180. 180 के आसपास का मेरा आंसर. 44 जा 160 हो गया बेटा, एंड 40.5 जा, दैट मींस 40 हाफ जा. तो ये हो गया आपका 160, ये आ गया आपका 160, और ये हो गया 20. तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 180 के आसपास. ऑप्शंस दूर दूर है, ऑप्शंस दूर दूर है. फास्ट कैलकुलेशंस कैसे करने का समझा. एक फास्ट कैलकुलेशन बेटा इधर सिखाया मैंने, बराबर, और दूसरा फास्ट कैलकुलेशन इधर सिखाया. जितना उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, तो जहां जहां नंबर राउंड ऑफ होता है करते जाने का. यस एवरीवन. सो दिस वाज 23rd. दिस वाज 23rd. जिसको भी बेटा डाउट था कॉपी करो. आई विल एक्सप्लेन एकदम आराम से. कॉपिंग वाइज ट्राई टू बी लिटिल फास्ट प्लीज. Done? Keep going on. ये जिंदा लोग रिप्लाई तो करो, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा. हो गया. चलो नेक्स्ट वन. This was 23rd. Any doubt between 24 and 31? 26 और 30 तो करना ही नहीं था वैसे भी. Any doubt between 24 and 31? Anyone? Any doubt between 24 and 31? चेक करते रहना बीच बीच में. कल चालू रिकॉर्डिंग में बंद हो गया था, सो जस्ट चेक करते रहना. ओके. 26 to sorry somebody say 27. 27. The temperature of a piece of iron is 27 degrees Celsius and it is radiating energy at the rate of Q kilowatt per meter square. If the temperature of the body is raised to 151, if the temperature of the body is raised to 151, क्या क्लास कैलकुलेशन है इसके. क्लास. ध्यान से सुनो बेटा. क्वेश्चन नंबर प्लीज. 27. कैलकुलेशंस ध्यान से सुनो. What is the first temperature? First temperature 27 degrees Celsius. That means it is 300 Kelvin. That time rate of flow of heat is suppose Q. What is the second temperature? 151 degrees Celsius. That is 324 Kelvin. Then what is the new rate? Yep. 424. Sorry. 424. इसका कैलकुलेशंस क्या सुपर्ब है. ध्यान से देखो. Very very nice. Do you agree with me? Q2 upon Q1 is T2 upon T1 raised to 4. Yes or no? That means it is 424 upon 300 raised to 4. नंबर देख के डर लगता है कि नहीं. नंबर देख के ही डर लगता है. जब ये लोग ऐसा आड़ा टेढ़ा नंबर देते हैं ना, ट्रस्ट मी, दे एक्चुअली लव यू. ट्रस्ट मी. देयरफॉर कैन आई राइट दिस एज 4.24 upon 3 raised to 4. So can I write this as 1.41 raised to 4? 1.41 is root 2. So this is root 2 raised to 4. That means 2 raised to 2. That means 4. Oh lovely. स्टूडेंट ये रेस टू 4 करते रहते हैं. तो जब ऐसा आड़ा टेढ़ा नंबर दिया ना, either they will be nice enough to you, and if you feel that they are not nice enough to you, they are actually very nice. Got it? Answer is beta 4. सर अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं ना. 4 to 4 को 400 लेंगे, उसमें 4 का बहुत ज्यादा राउंड ऑफ हो गया बेटा. 424 को 400 लिया तो वो लोग 127 दे सकते थे ना, फिर 151 क्यों दिया. 424 को 400 लिया, वो बहुत ज्यादा राउंड ऑफ हो गया. यू नो व्हाई? रेस टू 4 भी तो है. It's not that you are ignoring 24 with respect to 400. You are ignoring 24 raised to 4, which is as good as 25 raised to 4, which is as good as 5 raised to 8. How can you ignore that? If your bank balance is 5 raised to 8, will you ignore?
बिल्कुल नहीं करना, काउंट करके देखो करोड़ों में जाएगा। तो इतना ज्यादा राउंड ऑफ मत करो, इतना ज्यादा राउंड ऑफ मत करो बेटा। जिसको क्वेश्चन नंबर 27 नहीं आया था, जिसको क्वेश्चन नंबर 27 नहीं आया था, योर आंसर इज 4:1। योर आंसर इज 4:1। Question number 28 to 31. Anything? All your doubts are getting cleared nicely. Question number 31. Question number 31. Two copper spheres X and Y are having radii in the ratio. Very good. बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें बेटा Q एमिसिविटी पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। 31st क्वेश्चन में एमिसिविटी पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अंडरलाइन द वर्ड स्फीयर। व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 pi r square। 4 pi r square। एवरीबॉडी हियर, विल यू प्लीज हेल्प मी विद एमिसिविटी का रेशियोस? Will you please help me with emissivity का ratios? Sorry? Emissivity का ratio one more time please. 9:5. Ex upon Ey is 9/5. Okay. Radius का ratio? 3:5. Sorry? 3:5. Okay. And temperature का ratio? 227 degree Celsius and 27 degree. ओके, इसका मतलब बेटा दिस इज 500 केल्विन अपॉन 300 केल्विन। ध्यान से सुनो, Q by T डिपेंड्स ऑन E and 4 pi r square and T raised to 4 because area is 4 pi r square। इसका मतलब ये हुआ कि the rate depends on E r square and T raised to 4। फॉर्मूला समझा बेटा? अभी QX upon QY should be EX upon EY into RX upon RY square into TX upon T raised to 4। So my calculations continue here। Question number 31 का rate of X and rate of Y is EX upon EY and RX upon RY square and TX upon TY raised to 4। So 9/5 ये बेटा मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ, चलेगा? 9/25 और इसका मैं रेस टू 4 लिख रहा हूँ। 5 raised to 4 is 625, राइट? एंड 3 raised to 4 is 81। तो ये 625 और ये 125 गया 5 और ये 9 9 से 81 पूरा गया। So your answer is 5/1। Your answer is 5/1। जिनको 31 नहीं समझा था बेटा समझा अभी? 31 is continued here। Practice paper 1। Practice paper 1। Any doubt between 1 and 8? Practice paper 1। Everybody ready? Page number 147 of your book। Page number 147 of your book। Any doubt between 1 and 8? 8। You are given a disc, cube and sphere। एक बात ध्यान से सुनो बेटा, whenever you take different figures, 3-dimensional figures, right? Disc is a broader one, then cube is a compressed one। It is found that sphere occupies minimum possible surface area। You can try this experiment at home, it is very easy। Take some amount of clay and start making different figures out of it। पहले sphere बनाओ,
उसका रेडियस पता चलेगा, देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स, या तो आप अदरवाइज भी ढूंढ सकते हो स्केल रख के, दो मार्किंग करके। अब जैसे ये मेरे पास स्फीयर है, तो ये स्फीयर मैंने इधर रखा, इधर मैंने स्केल रखा, राइट, और इधर मैंने स्केल रखा, और बोर्ड पे ये 2 पॉइंट्स मार्क किया, तो मुझे डायमीटर मिला। देन आई कैन फाइंड आउट एरिया, एरिया इज 4πr²। देन आई विल डिफॉर्म दैट, उसी में से मैं क्यूब बनाऊंगा। सोचो, मैंने जब उसी को डिफॉर्म करके उसी में से क्यूब बनाया, मतलब वॉल्यूम इज द सेम बट एरिया विल नॉट बी द सेम, बिकॉज एरिया ऑफ अ क्यूब विल बी 610², राइट। वो भी मैंने नोट डाउन किया, उसी को डिफॉर्म किया, उसी में से डिस्क बनाया। एरिया ऑफ द डिस्क विल बी 2πr², बिकॉज डिस्क इज लाइक अ टी कॉस्टर, राइट। डिस्क इज लाइक अ कॉइन, डिस्क इज लाइक अ कॉइन, तो बेटा ये कॉइन है, करेक्ट। तो ये एरिया सर्कुलर हुआ, ये एरिया भी सर्कुलर हुआ, और ये एरिया एकदम माइनर हुआ, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज यूजुअली डिस्क के लिए थिकनेस इज वेरी स्मॉल। तो हीट विल बी emitted from here also, and heat will be emitted from here also. So out of this sphere and cube, sphere will have minimum area, and because it is having minimum area, it will liberate minimum heat. Are you getting this? तो इसका बेटा थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखो। If we make different three-dimensional figures using the same volume of clay or wax or some metal, बेटा आप घर पे मेटल से ये सब फिगर्स नहीं बना पाओगे, यू नीड अ फैक्ट्री फॉर दैट, राइट। लेकिन घर पे आप वैक्स लेके या तो क्ले लेके ये डिफरेंट फिगर्स बना सकते हो, राइट। सो व्हेन डिफरेंट फिगर्स, 3-dimensional फिगर्स लाइक डिस्क, क्यूब, स्फीयर आर मेड आउट ऑफ वैक्स और क्ले और मेटल यूजिंग द सेम वॉल्यूम्स, लिखा कॉमा एरिया ऑफ स्फीयर is found to be minimum. Area of sphere is found to be minimum, and therefore it will liberate minimum heat. Maximum will be plate, because plate में तेरा उसी को डिसमेंटल करके तू ब्रॉडर एरिया बना रही है बेटा। तेरा क्यूब में 6 फेसिस में एरिया कवर हो जाएगा, तो उतना एल छोटा छोटा होता जाएगा, बिकॉज यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड्स। A cube is having 6 faces, 12 sides. Are you getting my point? उसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन काम हो जाएगा। It is something like this. बेटा मुझे 10 लाख रुपया 10 जन के बीच में बांटना है, और वही 10 लाख रुपया मुझे 2 ही जन के बीच में बांटना है, तो ज्यादा अमाउंट किसको मिलेगा? 2 ही जन, बराबर। तो प्लेट में it is a broader surface area. माइंड यू आपको वॉल्यूम सेम रखना है, whatever amount of wax you have taken, you have to make different figures out of that only. Got it? Mind you, this is the best reason we have a chapter called properties of fluids. We have a sub chapter called surface tension. उसमें बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि why the liquid drops are spherical only. सोचा है कभी? Liquid drops are spherical. Soap bubbles are spherical. Have you seen cubical bubbles anytime? Have you seen cylindrical bubbles? The day you see that, leave everything in life and start doing research on that, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं मिला है। That means Nobel Prize in Physics is waiting for you. मिला ही नहीं है, क्योंकि बेटा ये typical question है physics का। Sphere occupies minimum possible area, and therefore it has minimum potential energy, and therefore it is stable. When the cloud, when the rain starts coming out, the water part, when it comes out, the moment it comes on contact with surrounding air, the liquid drops will be start forming, and those liquid drops are spherical. Bubbles are spherical. Yes or no? अब इसमें कभी कभी एक छोटा सा लॉजिकल थिंकिंग ये होता है, बचपन में सब लोगों ने ये गेम खेला हुआ है, सब लोगों ने। आप लोग एक रिंग बनाते हो मेटल का, एक स्ट्रॉ लेते हो और उसको सोप सॉल्यूशन में डुबाते हो, और बाद में यू ब्लो एयर, सो द बबल्स कम आउट। यस और नो? अभी स्टूडेंट का आर्ग्यूमेंट इसमें ये रहता है कि सर दैट रिंग इज सर्कुलर, तो सर्कल इज 2 डायमेंशन, तो उसका 3 डायमेंशन एक्सटेंशन इज स्फीयर, राइट। तो आर्ग्यूमेंट ये होता है बेटा कि
जरूरी नहीं है कि आप रिंग सर्कुलर बनाओ, कोई भी जिगजैग शेप का बनाओ, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगुलर बनाओ और इसमें सोप फिल करो एंड देन यू ब्लो एयर। अगर तुम लोगों का लॉजिक सही होता तो इधर क्यूबिक बबल्स आना चाहिए। स्क्वायर का 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन इज क्यूब, इधर क्यूबॉइड बबल आना चाहिए था और इधर कोई भी आना टेढ़ा शेप का बबल आना चाहिए। इसका शेप लूज होना तब शुरू होता है जब वो बबल्स बहुत बड़े होते हैं। Yes or no? And they cannot sustain themselves. So mind you, sphere is found to be the figure, 3-dimensional figure which occupies minimum possible area if the volume is kept constant. If the condition applies, if the volume is kept constant. मैंने बेटा इतना वैक्स में से स्फीयर बनाया और मैंने इतना वैक्स में से प्लेट बनाया, तो इतना वैक्स का जो प्लेट बनाऊंगा वो तो फिर उसका एरिया कम ही होगा ना, वॉल्यूम सेम रखने का। Very very important. It was a good doubt. 8th question was a good doubt. Practice paper 1 question 8, nice one. Practice paper 1 question 8, nice one. बोल 7. Seventh. A substance which emits only wavelengths lambda 1 and lambda 2 and lambda 3 is heated up to 500 degrees Celsius. When it is cooled to 150, मतलब 500 से मैंने उसको 150 तक cool किया, it will absorb only those wavelengths. Common sense apply करो बेटा. If it emits all, it should absorb also all. कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये hot body तो है. When this is a hot body, 150 degrees Celsius is a real high temperature. That means we have to apply Stephen's law. Stephen's law is a black body spectrum. याद करो पास्ट में असाइनमेंट में ये क्वेश्चन था स्टार्टिंग में. Black body spectrum is a continuous spectrum. That means it gives all and it takes all. इसका आर्ग्यूमेंट लिखना है तो लिखो राइट साइड पे. Since the temperatures are very high, 7th question का आर्ग्यूमेंट. Since the temperatures are very high, comma, it obeys Stephen's law. It obeys Stephen's law. That is black body spectrum. That is black body spectrum. That is it emits all. It emits all and absorbs all. Emits all and absorbs all. Next sentence. Since it emitted lambda 1, lambda 2 and lambda 3, since it emitted lambda 1, lambda 2 and lambda 3, therefore it will absorb also. Therefore it will absorb also lambda 1, lambda 2 and lambda 3. Lambda 1, lambda 2 and lambda 3. लॉजिक समझा बेटा? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू हैव टेकन आयरन रॉड. इसका मेल्टिंग पॉइंट इज वे हायर. अभी तूने इसको फ्लेम पे रखा. जब फ्लेम पे रखा तेरा स्टार्टिंग टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस. बाद में हो गया 40, 70, 100. माइंड यू आर नॉट यूजिंग वाटर, यू आर यूजिंग अ मेटल. 200, 300, 400, 500. मेल्ट नहीं हो रहा है. अब ये 500 के आसपास पहुंच गया, मैंने फ्लेम बंद कर दिया. और आई एम टेकिंग इट आउट ऑफ द फर्नेस. सो when I started observing the color of the rod, initially it must have become red hot, then orangish red, then yellowish orange, then yellow hot. मैंने उसको melting point तक लेके नहीं गया, तो white hot शायद नहीं आएगा. Now when I allow it to cool, can I say these colors will start gradually getting disappeared, and I will come back to the original metallic luster. समझा बेटा? So it emits all, it absorbs all. वैसे अच्छा doubt था. 7th also was a good doubt. 7th also was a good doubt. 10th में किसी को डाउट? 10th बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा. बहुत मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है.
the temperature of a black body which emits radiation at a rate of 5.67, अभी मुझे नंबर ही 5.67 दिख रहा है, तो मेरा स्टीफेंस कांस्टेंट के साथ कैंसिल होने वाला है. Now what is this 5.67 watt per centimeter square? Can you judge what is it? Can you judge what is it? This is practice paper 1 का question number please. 10. ध्यान से सुनो बेटा. It is Q by 80. मुझे कैसे मालूम है Q by 80 है? Watt per centimeter square. Is it 5.67 watt per centimeter square? सोचो. अब ये सोच ऐसा मैंने क्यों किया? Because मेरे पास जो सिग्मा का वैल्यू है वो ऐसा यूनिट्स में. That means this is joule per meter square per second per Kelvin raised to 4. तो अगर मुझे इसके साथ काउंटर एक्ट करना है तो ये मेरा मीटर स्क्वायर में होना चाहिए. This was the only catch. So is it 5.67 into 10 raised to plus 4 SI units. Sigma anyways is 5.67 into 10 raised to minus 8 SI units. Temperature पूछा है. So can I say Q by 80 is sigma times T raised to 4. Q by 80 is 5.67 into 10 raised to 4. Sigma is 5.67 into 10 raised to minus 8 into T raised to 4. तो 5.67 गया. ये 10 raised to minus 8 नीचे आएगा. ऊपर जाके 10 raised to plus 8 हो जाएगा. That means T raised to 4 is 10 raised to 12. That means T is 10 raised to 12 का fourth root. Square root will be 10 raised to 6. One more square root will be 10 raised to 3. So my answer is 1000 Kelvin. हाँ तो डायरेक्ट करना बेटा, क्या फर्क पड़ता है. 10 raised to 12 का fourth root, चलना क्या फर्क पड़ा. ये देख 4 3 12, चल बस. तो आंसर इज 1000 Kelvin. अब इसमें तुम्हारा और दिमाग खराब करना है ना उनको, तो लोग 727 डिग्री सेल्सियस देंगे. और जानबूझ के जो 1000 केल्विन आंसर आया ना उसको 1000 सेल्सियस देंगे. आर यू गेटिंग दिस? जिनको प्रैक्टिस पेपर 1 का 10th नहीं आया था, सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड. योर आंसर इज 1000 केल्विन. योर आंसर इज 1000 केल्विन. That means 727 degree Celsius. That means 727 degree Celsius. Next. Practice paper 1. Question number 12 में किसी को कोई डाउट? प्रैक्टिस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को कोई डाउट? 15 यस 15. अप्रोक्सीमेटली बोला है बेटा, अप्रोक्सीमेटली बोला है. कॉन्सेंट्रेट. द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%. एवरीबडी हियर, एवरीबडी हियर. Question number please. 15. If the temperature of the body is T, original temperature, then the new temperature is T plus 50% of T. What is the meaning of that? Is it 1.5 T? Can I write 1.5 T as 3/2 T? चलेगा? तो उन्होंने बोला कि the new heat energy is increased by how much? Apply common sense. Apply common sense. Can I say Q2 upon Q1 is T2 upon T1 raised to 4. So Q2 upon Q1 is 3/2 raised to 4. बराबर ना? 3/2 raised to 4. That means it is 81 upon 16. तो बेटा ये approximately 5 हुआ. उन्होंने बोला ये approximately 16 5 है 80. उसके बदले में 81 ले रहा हूं. बराबर ना? सो नया एनर्जी पुराना एनर्जी का 5 टाइम्स हुआ. बराबर. एंड देयरफॉर इंक्रीज इन एनर्जी इज नया एनर्जी माइनस पुराना एनर्जी. इज इट 5Q1 minus Q1? That means it is 4Q1 and 4Q1 means it becomes 400%. उन्होंने नया एनर्जी पूछा होता तो 500%.
चेंज पूछा है इसलिए 400%। पूछने का स्टाइल मस्त, समझा आपकी, वापिस बोलो। अब इसमें स्टूडेंट किधर गलती करते मैं बोलता हूँ, ये 1.5 करते रहते हैं। That means 1.5 into 1.5 is 2.25 into 1.5 is into 1.5 is, पागल हो जाओगे। ये सब करते नहीं बैठने का, सिंपल फ्रैक्शन लाने का, ताकि आप लोगों का सिंगल डिजिट का रेज़ टू 4 मिले। सिंगल डिजिट का रेज़ टू 4 ढूंढना इजी होता है, समझा? अब इसमें लोग क्या वेरिएशन ला सकते हैं? ये 50% के बदले 30% बोला है ना, तो 1.3, तो 1.3 को लिखने का 13/10, राउंड फिगर, अप्रोक्सीमेटली तो बोलेंगे वो लोग, यस और। इसमें सबसे डेंजरस क्वेश्चन क्या आता है मालूम है? दिस इज इंक्रीज बाय 50%. What if it is increased by 5%? If the error is 5 or less than 5, power becomes coefficient. Power was 4, that means it will be 20%. नहीं समझा? If the temperature is increased by 1%, then the energy is increased by how much? Very good. 2%, 3%, 4%, 5%, 6%. Don't take chance. Now solve. 1.06 raised to 4. 7% solve, 8% solve. लेकिन अगर ऑप्शंस दूर दूर है तो चलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बेटा, एकदम डेंजरस क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1%, देन हीट एनर्जी इज इंक्रीज बाय 4%। बराबर? स्टीफन्स लॉ में इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1%, हीट इंक्रीजेस बाय 4 times 1%, that means 4%. But if the temperature is increased by 10%, Q is increased by 4 times 10%, that is 40%, is a wrong statement. Prove करता हूँ. Can I say Q2 upon Q1 will be 1.1 raised to 4? 10% से इंक्रीज हुआ ना बेटा, ये 50% से इंक्रीज हुआ तो आपने क्या लिखा? 1.5 लिखा। 40 से होता तो आप क्या लिखते? 10 से तो आप क्या लिखोगे? 1.1 raised to 4 is 1.21 raised to 2, and that is 14641. मतलब बेटा ये 46.4% इंक्रीज हुआ है, 40% नहीं। That means शॉर्टकट सिर्फ तब तक वर्क करता है जब तक एरर 5% के अंदर है, उसके बाद में वो एरर अप्लाई नहीं करने का। यस और नो? नहीं तो बेटा इसको भी मैं, ये 5% के बदले 50% है, अगर मैं पावर बिकम्स कोएफिशिएंट रूल अप्लाई करता तो ये 20% आता, किधर 20% आया? खतरनाक लेवल पे इंक्रीज हुआ। तो तू जो 424 को राउंड ऑफ करके 400 करने की बात कर रही थी, सोच वो कितना बड़ा एरर था। ये समझा बेटा? आई स्ट्रांगली सजेस्ट ये पार्ट आप लोगों को कॉपी करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके। शॉर्टकट्स कब मारने का? व्हेन द परसेंटेज इज विद इन 5, पावर बिकम्स कोएफिशिएंट. पावर बिकम्स कोएफिशिएंट इज वैलिड ओनली फॉर विद इन 5%. पहले एक छोटा सा कमेंट लिखता हूं मैं, पावर बिकम्स कोएफिशिएंट इज valid only within 5%. मतलब ये आंसर मेरा राइट आया, लेकिन ये आंसर मेरा रॉन्ग आया। चेक, मेरा आंसर 40% नहीं आया, 46.4% आया। क्या हुआ? 6 और 1 कैसे आया? 1.4641. That means the change is 0.4641. So 0.4641 is 46.41%.
समझा बेटा? If the temperature is increased by 3%, can we say heat will be increased by 12% will be okay? But if the temperature is increased by 30%, then the answer will not be 120%. It will be well beyond that. Copy हो गया बेटा ये? अच्छा डाउट था जिसने भी पूछा था। ऑप्शन में 500% है क्या? नहीं है। हाँ, 500% कब होता है? When they ask you new. When they ask you new. कोई भी एक ऑप्शन चेंज कर लो ना, कोई भी एक ऑप्शन को 500% करो और बोलो will be the answer if new is asked. This was question number 15 of practice paper 1. This was question number 15 of practice paper 1. 400% को छोड़ के कोई भी एक ऑप्शन को 500% करो और बोलो कि this will be the answer if they have asked you the new. This will be the answer if they have asked you the new. चलो बेटा, back to practice paper 1. Back to practice paper 1. Any doubt between 18 to 20? Any doubt between 18 to 20? Anybody? 20? हाँ, ये फेरिस ब्लैक बॉडी है बेटा, सॉरी फेरिस ब्लैक बॉडी करवाया नहीं ना मैंने। सर्कल कर दो, पेंसिल से सर्कल करो, पेंसिल से सर्कल करो, पेंसिल से ही कमेंट लिखो। वेट फॉर फेरिस ब्लैक बॉडी, वेट फॉर फेरिस ब्लैक बॉडी। क्वेश्चन नंबर 20 होल्ड पे रखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 होल्ड पे रखो। Any doubt between 26 and 33? Anybody? 29th, 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 29th में डाउट। इमिसिव पावर क्यों गलत है? m1 L0T minus 3 ES is Q by 80 बराबर तो है। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आंसर। ES is Q by 80 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड आ रहा है, बराबर है। मिस्टेक समझा बेटा? श्योर? Once again, any doubt between 26 and 33? Anybody? 28, 28, 28. Radiations belong to infrared spectrum. Heat radiations belong to infrared. एक मिनट, हाँ एक मिनट, समझा डाउट? क्वेश्चन नंबर 30. मस्त क्वेश्चन, टू गुड, वेरी नाइस. Emissive power of a cube, underline cube beta, underline cube. When it radiates heat energy as 60 watt, 60 watt means 60 joule per second at that temperature, then what is the length of the side? Everybody here, easy question है वैसे. What is emissive power का formula? Question number please. 30. What is emissive power का formula? Is it Q upon 80? So should this be Q upon SOCHO? 6 L square T. So what is L square? Is it Q upon 6 into T into ES? Yes or no? उन्होंने मुझे इमिसिव पावर दिया हुआ है 1000, मतलब ये मुझे मालूम है, और उन्होंने मुझे हीट रेडिएटेड एट अ रेट दिया है 60 वॉट, मतलब बेटा ये भी मुझे मालूम है 60 watt is Q by T. 60 watt is Q by T. So this is 60 upon 6 into ES का वैल्यू कितना है? 1000. Right? That means L square is 1 upon 100. That means L is 1 upon 10 meter. That means 10 centimeter. नहीं समझा? स्क्वायर रूट लेना भूल गई होगी बेटा तू। तो ये बहुत ही बड़ा क्यूब हो गया, सोच, थोड़ा लॉजिक आना चाहिए दिमाग में। अगर L 100 सेंटीमीटर है मतलब वो इतना है, इससे भी बड़ा, दिस इज 1 मीटर, तो क्यूब कितना बड़ा होगा? सोच, इट विल बी अ बिग स्लैब, करेक्ट? एनीवेज, यू माइट हैव फॉरगॉटन मे बी टू टेक स्क्वायर रूट और मे बी रॉन्ग ट्रांसफर ऑफ टर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Any other doubt between 26 and 33? 32. Morning sun is not as hot as midday because that time sun is far from you. So intensity is inversely proportional to square of distance. Noon के टाइम पे बेटा एकदम overhead होता है. Noon के टाइम पे it is closest. So afternoon के टाइम पे या तो early morning के टाइम पे या तो late evening के टाइम पे the solar radiations will have to cover larger distance. तो argument लिखना है बेटा, mathematical argument ये है. Mathematical argument ये है, intensity is inversely proportional to square of distance. Noon के टाइम पे sun is closest, right? Morning टाइम पे और evening टाइम पे sun is far. So the solar radiations have to travel greater distance. Therefore their intensity goes down. एक सिंपल सी बात है बेटा, मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ. Sound wave is reaching her, sound wave is reaching him, sound wave is reaching last bench. बराबर? अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये मैंने दरवाजा खोल दिया. That means sound wave is reaching in the outer space also. ये खोल दिया मैंने. तो sound wave is reaching till highway also. लेकिन कोई बंदा हाईवे पे खड़ा होगा तो उसको मेरी आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी. ऐसा नहीं कि साउंड ट्रैवल नहीं कर रहा है. But by the time sound reaches that person, the intensity of sound has gone really, really down, which is beyond the capacity of human brain to understand. Got it? Sure. Practice paper 2. Any doubt between 1 and 12? बेटा जितने questions में homework दे रहा हूँ ना, एकदम शिद्दत से और ईमानदारी से करने का. See, because then you will come to know कि what you understood and what you did not understand. Right? How to deal with complicated calculations in simple manner. What can be the possible support to you? Right? ये सब डिस्कस करेंगे तो समझेगा. लेकिन जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, पता नहीं चलेगा कि what is your weak point. Okay? चलो बेटा, प्रैक्टिस पेपर 2 1 to 12 में किसी को भी कोई डाउट? Sorry, 7. Question number 7. A piece of blue glass is heated to a high temperature and a piece of red glass is at room temperature. Beta, blue glass is heated but red glass is at room temperature. So the one who is absorbing more will emit more. So after some time when I observe blue glass and red glass, who will appear more bright? Because it was heated. Yes or no? Red glass was taken at room temperature. Underlying blue glass was heated. Then you take down the argument. The one who absorbs more emits also more. The one who absorbs more emits also more, and therefore appears more bright. And therefore appears more bright. The one who absorbs more emits also more, and therefore appears more bright. Between 1 and 12, any other doubt? Anybody? I'm waiting. 12 का अप्रॉक्स लिया है तो अलग आंसर आ रहा है. Check. 58 और 60 है, क्लोज है, बराबर है. लेकिन इसमें बेटा अप्रॉक्स क्यों लेना है? नहीं, क्यों लेना है? तेरा जब 0.0029 से तेरा वैल्यू कैंसिल हो रहा है. 29/5 is 58/10. तो तू 29 को राउंड ऑफ करके 30 कैसे ले रही है? जिधर राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़नी चाहिए पड़नी चाहिए. Here 58 नैनोमीटर एग्जैक्ट आ रहा है. So don't say कि राउंड ऑफ किया तो 60 आया. When the options are very close, go for exact calculations. When the options are very close, go for exact calculations. चलो बेटा, 16 to 18 में किसी को कोई डाउट? 16 to 18. 20 में किसी को कोई डाउट? 20. Sorry? 17. Okay. कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा. Repeat question. Wavelength becomes 3/4. इधर देख. Wavelength becomes 3/4. If wavelength becomes 3/4, that means temperature becomes 4/3. Wien's law. And then 4/3 का raised to 4. Stephen's law. 256/81. Assignment 1 का question. Ditto. जरा ढूंढो मेरे लिए. Please बताओ. 31 of assignment. Red pen, red.
लिख ले बेटा, रिपीट क्वेश्चन 31 ऑफ असाइनमेंट 1. रिपीट क्वेश्चन 31 ऑफ असाइनमेंट 1. क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ प्रैक्टिस पेपर 2 इज रिपीट क्वेश्चन. परफेक्ट बोल रही है ना, लिख रहा हूँ सब बैच में. हाँ, क्वेश्चन 31 ऑफ असाइनमेंट 1. चलो 20 में किसी को डाउट? 23 to 26 में किसी को डाउट? 25th 25th आंसर 3/2 आ रहा है बेटा, पीछे रॉन्ग है, पीछे 2/3 दिया. नहीं, पीछे 3/2 दिया. एक मिनट, then let us check. The light emitted by sun has maximum wavelength 570. The light emitted by the star, sun और star अलग अलग अंडरलाइन करो, is having wavelength 380. What is the ratio of surface tension of star to that of sun? न्यूमरेटर में स्टार चाहिए, न्यूमरेटर में. So everybody here. Practice paper 2. Question number बोलो please. 25. Temperature of star upon temperature of sun is wavelength of sun. Wavelength star. Wavelength of sun बोलो please. And this is 380. तो बराबर आ रहा है बेटा 3/2. तो बराबर ना. टेम्परेचर ऑफ स्टार अपॉन टेम्परेचर ऑफ सन पूछा है बालिके. टेम्परेचर ऑफ स्टार अपॉन टेम्परेचर ऑफ सन पूछा है. दैट मींस इट शुड बी वेवलेंथ और रिलेटेड टू सन अपॉन वेवलेंथ रिलेटेड टू स्टार. मतलब आंसर इज 3/2. बराबर है. चलो क्वेश्चन नंबर 28 में किसी को डाउट? 29 में किसी को डाउट? 28, 29 एनीबॉडी? 33 श्योर? 34 33 एक बार करो. काय रे, temperature becomes 3 times, energy becomes 81 times. 8150s are 4050. Temperature is going from 250 Kelvin to 750 Kelvin. Temperature becomes 3 times. Raised to 4 becomes 81 times. 8150s are. Answer is 4050. चलो और कोई डाउट? ओके, अब मैं एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कर देता हूं. That is Newton's law. Okay, and thereafter in the next class I'll be discussing all the assignment ka questions which are pending on Stephen's law as well as Newton's law. Newton's law very 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 simple, very simple. उसमें बेटा अलग अलग क्वालिटीज है. हम लोग जो नॉर्मल सोडियम सिलिकेट ग्लास यूज करते हैं दैट कम्स अंडर डायथर्मेंट्स. देन देयर आर डिफरेंट ग्लासेस. हाँ, वो मैंने चेंज करवाया था. डायथर्मेंट्स में there are different glasses like Pyrex glass, Perspex glass. चलो बेटा हो गया. एकदम क्लियर पिक्चर लगेगा, एकदम हॉरिजॉन्टल, एकदम परफेक्ट हॉरिजॉन्टल खड़ा हो जाएगा. राइट साइड में आएगा तो चलेगा, नहीं आ रहा है तो पीछे परफेक्ट हॉरिजॉन्टल. खड़ी हो सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन 32 में
So you can just take the photo. I know. In settings. तो rotate, हाँ? In settings you can take the existing photo. मालूम है. महिला मंडल. Boys, don't follow girls. As I told you, first I'll be finishing up those laws on which more number of MCQs are there. Harry's black body is an article where there are only 2 to 3 MCQs because it's a theoretical article. Kirchhoff's law simply says that A equal to E. The majority number of questions come on Stephen's law and Newton's law. Now check what is Newton's law of pulling. Try to understand. Books beta ekdam ban. Books ekdam ban. Newton's law of pulling. First of all, Newton's law of pulling is applicable to ordinary bodies also. It is applicable to ordinary bodies also. इसका मतलब ये हुआ कि it is not necessary that you are dealing with black bodies only. You can deal with ordinary bodies also. Point number 1. Point number 2, very very important point. The temperature difference should be small. Right? Ideally कितना होना चाहिए? Within 30%. Ideally. Within 30 degree Celsius. Ideally. लेकिन एक बार 50 degree Celsius तक चलेगा. Up to 50 degree Celsius allowed. Up to 50 degree Celsius allowed. Till then Newton's law works. What do I mean by that? I am giving you water at 25 degrees Celsius. Heat it up to 50. Allow it to cool. Or else heat it up to 60. Allow it to cool. Or heat it up to 70. Allow it to cool. Then Newton's law will be valid. The most important thing is temperatures have to be kept in degree centigrade only. Unlike black bodies में आपको टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना है. अब इसका फायदा ये हो गया बेटा, आपका कैलकुलेशंस एकदम सिंपल हो गया. And the fourth and the most important thing is the rate of loss of heat depends on temperature difference and not theta raised to 4, theta 0 raised to 4. मतलब आपका कैलकुलेशंस एकदम पपलू हो गया. What do I mean by that? Now what I am writing is actual performance of Newton's law of cooling in the laboratory. Actual performance. Very very simple article. ध्यान से सुनो बेटा. ध्यान से सुनो. Here what we do is we first take some starting temperature. Suppose some starting temperature is 25 degrees Celsius. Now I am giving you water which you have to heat up to 60 degrees Celsius, 65 degrees Celsius, 70 degrees Celsius. Ideally don't cross this reading, right? मान लो मैंने इसको 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, राइट? और मैंने वो टाइम पे जैसे ये 75 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ द गैस और आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ द फ्लेम. दैट मींस दिस इज द हाईएस्ट टेंपरेचर अप टू व्हिच आई एम गोइंग, राइट? टाइम दैट टाइम शुड बी टेकन एज 0 मिनट्स बिकॉज मैं बोल रहा हूं ये मेरा पहला रीडिंग है, राइट? सपोज इसको मैंने थोड़ा राउंड फिगर करके 80 लिखा, थोड़ा राउंड फिगर करके 80 लिखा, right? When I take this reading after every 1 minute, right? I will observe this pattern. 80 to 76, 76 to 72, 72 to 68, 68 to 64. इसका मतलब ये हुआ कि initially the fall is very fast. 5th minute में मैं expect कर रहा हूं
कि ये 60 हो जाएगा, but this will be 61. 6th मिनट पे it will be 58. 7th मिनट पे it will be 56. 8th मिनट पे it will be 54. Right? 9th मिनट पे it will be 52.5. 10th मिनट पे it will be 51. 11th मिनट पे it will be 50. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? As time passes on, can I say the cooling becomes slow? Because the rate of loss of heat is dependent on temperature difference. Temperature difference, not temperature. मतलब मेरा सबसे पहला रीडिंग 80 - 25 को प्रोपोर्शनल था, लेकिन दूसरा रीडिंग अब मैं बेटा 80 भी नहीं ले सकता, 76 भी नहीं ले सकता, तो मुझे ये दोनों का एवरेज टेम्परेचर देना चाहिए। तो ये दोनों का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 78। फिर ये दोनों का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 74। फिर नेक्स्ट वाले का एवरेज टेम्परेचर कितना है? मतलब ये हुआ कि इधर मैं लिखूंगा थीटा एवरेज। तो मेरा सबसे पहला आंसर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? 80 - 25। लेकिन मेरा दूसरा आंसर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? 78 - 25। तीसरा आंसर 74 - 25। What do I mean by this? As time passes on, as time passes on, do you agree with me? Do you agree with me? As time passes on, do you agree with me? Temperature difference कम होते जा रहा है। थीटा एवरेज माइनस थीटा जीरो डिक्रीजेस। चेक 80 - 25। अभी एकदम पहला वाला टेम्परेचर तो सिंगल टेम्परेचर है ना मेरे पास, तो मेरे पास 80 - 25 लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन दूसरे वाले में मैं 80 पे भी नहीं हूँ, मैं 76 पे भी नहीं हूँ, राइट? बिकॉज द बॉडी इज कूलिंग फ्रॉम 80 to 76। और मैंने डिसाइड किया कि मैं हर एक रीडिंग 1 मिनट के बाद दूंगा। अगर मुझे और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो मैं हर एक रीडिंग हाफ मिनट के बाद दूंगा। मुझे और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हर एक रीडिंग में 10 सेकंड के बाद दूंगा। और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन बेटा उसमें फिर मेरा रिकॉर्डिंग बहुत फास्ट होना चाहिए टेम्परेचर का। आर यू गेटिंग दिस? हर 5 सेकंड के बाद मुझे रीडिंग लेना है, लेकिन मेरा वो आंसर बहुत ही अच्छा आएगा, राइट? आर यू गेटिंग दिस? सो एज टाइम पासेस ऑन, थीटा एवरेज माइनस थीटा जीरो डिक्रीजेस। इसका मतलब बेटा ये रेट ऑफ कूलिंग स्लो हुआ कि नहीं? यस और नो? दिस बिकम्स स्लो। इसका मतलब पहले ये रेट से, जो रेट से एनर्जी देता था, वो रेट अभी कम हो जाएगा। चेक करो बेटा, दिस रेट वाज 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, दिस वाज 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, बट व्हाट अबाउट दिस? 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ये मेरा टाइम मिनट्स में ले रहा हूं मैं, और टेम्परेचर मेरा डिग्री सेल्सियस में है। द रूल सेज दैट केल्विन में नहीं कन्वर्ट करना है, राइट? तो इसको सेल्सियस में ही रखो। इधर मेरा रेट ऑफ कूलिंग कितना हो गया? इधर मेरा रेट ऑफ कूलिंग कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। लेकिन इधर रेट ऑफ कूलिंग कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। इधर रेट ऑफ कूलिंग कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। इधर टेम्परेचर फॉल कितना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। इधर कितना है? मतलब जब आप अप्रोक्सीमेटली 19th 20th मिनट पे पहुंचोगे, 19th मिनट पे और 20th मिनट पे, हो सकता है ये टेम्परेचर 48 है और ये 47.5 है। फिर मान लो आप 24th मिनट पे पहुंचे और 25th मिनट पे पहुंचे, तो हो सकता है ये टेम्परेचर 47.3 है और ये 47.2 है। इसका मतलब ये हुआ कि एज टाइम पासिस ऑन, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बिकम्स स्लो। यस और नो? अब एक मस्त शॉर्टकट देता हूं, ध्यान से सुनो बेटा, एकदम ध्यान से सुनो। वेरी वेरी ब्यूटीफुल शॉर्टकट। अगर बॉडी का टेम्परेचर 60 है और इसको 55 डिग्री सेल्सियस तक जाने में 2 मिनट लगता है, तो बेटा 55 to 50 डिग्री सेल्सियस जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट? ज्यादा, कम, कि नथिंग कैन बी सेड? सोच के बोलना। आर्ग्यूमेंट इज दिस बेटा, ज्यादा। इधर टेम्परेचर फॉल 5 डिग्री का है, इधर भी टेम्परेचर फॉल 5 डिग्री का है, बट इट इज बिकमिंग स्लो, सो इट टेक्स मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। समझा कि वापिस बोल? एकदम सिंपल है बेटा। मान लो आप
10 मिनट के लिए भागने वाले हो। तो स्टार्टिंग के 2 मिनट में आपने जितना डिस्टेंस कवर किया, राइट, आपको लग रहा है कि 7th मिनट टू 9th मिनट में आप सेम डिस्टेंस कवर करोगे? ज्यादा करोगे कि कम? बिकॉज यू आर टायर्ड, बिकॉज यू ऑलरेडी लॉस्ट सम एनर्जी। लॉजिक समझा बेटा? तो ये आंसर मेरा 2 मिनट्स नहीं आएगा, ये मोर देन 2 मिनट्स आएगा। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द आईपैड नोट्स विथ यू, उसमें ये शॉर्टकट्स दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, सोच के आंसर देना। दिस इज शॉर्टकट नंबर 1। शॉर्टकट नंबर 2, अगर मैंने 60 डिग्री से शुरू किया, राइट, और मुझे 55 डिग्री मिला 2 मिनट के बाद, तो बेटा और 2 मिनट के बाद मुझे टेम्परेचर कितना मिलेगा? विल इट बी 50? मोर देन 50? वेरी गुड, बिकॉज कूलिंग बिकम्स स्लो, कूलिंग बिकम्स स्लो, सो द अवेलेबल टेम्परेचर इज मोर देन एक्सपेक्टेड। तो ये मेरा 50 नहीं होगा, दिस इज मोर देन 50। लॉजिक समझा बेटा? श्योर? So we get the first formula, and that first formula of Newton's law of cooling is very simple. It says that dq by dt is proportional to theta minus theta 0. This theta minus theta 0 is called excess of temperature. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Extra temperature, मतलब बॉडी के टेम्परेचर से, सॉरी, सराउंडिंग टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर कितना ऊपर है? Why can't we do it in Kelvin? Because we are finding delta theta only, ना, so it will be same. इसमें चलेगा, नो प्रॉब्लम, इसमें चलेगा, लेकिन इसमें तुझे केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत। Yeah, but if it is already given in हाँ, Kelvin, मतलब यूनिट में अगर पर केल्विन दिया है तो चलेगा, अगर डी थीटा है तो नो प्रॉब्लम। एक्सेस, दिस इज एक्सेस ऑफ टेम्परेचर। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ सेज दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, Q मतलब हीट, माइंड यू, Q मतलब हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to excess of temperature provided the excess is small, provided the excess is small। कितना होना चाहिए? अराउंड 30 डिग्री तक रहेगा तो बेस्ट आंसर मिलेगा, ज्यादा रहेगा तो थोड़ा पुअर आंसर मिलेगा। मतलब आप लोग क्या कर सकते हो मालूम है? आपका रूम टेम्परेचर था 25, आपने 80 से शुरू किया, तो ये 60 तक के रीडिंग्स ही मत लो, लेने के लिए लो लेकिन इंक्लूड मत करो अपने मेन ग्राफ में। मतलब आप यहां से रीडिंग एक्चुअल काउंट न करना शुरू करो, बिकॉज दिस इज 65 एंड दिस इज 25, कैन आई से द टेम्परेचर डिफरेंस इज अराउंड 40, सो यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर आंसर्स। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं ले सकते हो, ले सकते हो, राइट, बट यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर आंसर्स आफ्टर द टेम्परेचर डिफरेंस बिकम्स 30। फर्स्ट पार्ट समझा बेटा? सो टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू असाइन सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज टेकन एज k, दैट कांस्टेंट इज टेकन एज k। अब ये जो बेटा मैंने थीटा माइनस थीटा 0 लिखा ना, इधर लिखने का थीटा एवरेज माइनस थीटा 0। थीटा एवरेज मतलब आप मान लो 76 से 72 पे जा रहे हो, तो आपको 76 भी नहीं लेना है, 72 भी नहीं लेना है, 74 लेना है। अगर आप 51 से 50 जा रहे हो तो आपको 51 भी नहीं लेना है, 50 भी नहीं लेना है, 50.5 लेना है। तो बेटा ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला वेरी सिंपल, ओवर योर हीट एनर्जी सप्लाई या तो लॉस्ट, it is only change of temperature, there is no question of change of state. So can I write Q as mc theta? Can I write Q as mc theta? इसका मतलब I can rewrite this formula as d by dt of mc theta is k times theta average minus theta 0, right? m और c चेंज नहीं होगा बेटा टाइम के साथ, m और c चेंज नहीं होगा, mass of the substance cannot change, specific heat cannot change, right? So this m and c can come out, then m and c can come out, that means only temperature will change with respect to time. This is k times theta average minus theta 0, mc shift करो, so d theta by dt is k upon mc times theta average minus theta 0। माइंड यू ये dq upon dt था, अब ये d theta upon dt है, तो who is this, right? तो जब ये डेफिनेशन बोलते हो तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोलने का, बिकॉज वी आर स्टडिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वी आर नॉट स्टडिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट? तो यहाँ पे बोलना है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोलने का, इसको क्या बोलने का? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। लेकिन अगर यहां पे बोला, यहां पे तो क्या बोलेगा? रेट ऑफ
फॉल, कंपल्सरी फॉल ही बोलने का, रेट ऑफ हाई राइज नहीं है, फॉल ही है। तो आइदर बोलो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, या तो बोलो रेट ऑफ कूलिंग, या तो बोलो रेट ऑफ कूलिंग। अच्छा, डू यू एग्री विथ मी दिस विल बी सम न्यू कांस्टेंट? K was constant, M was constant, C was constant. So we can give some new name to this. Say K dash. Say K dash. अपना formula simple बनाने के लिए, अपना formula simple. So I get my final most formula as d theta upon dt is K dash times theta average minus theta zero. Theta average minus theta zero. So there are two ways of writing Newton's law of cooling. One, rate of loss of heat is directly proportional to excess of temperature provided the excess is small. Second way of saying this, can I say यहां से मुझे मिलेगा d theta by dt is proportional to theta average minus theta zero, right? So what will be the second way of saying this? Rate of fall of temperature या तो rate of cooling is directly proportional to excess of temperature provided excess is small. So Newton's law of cooling can be written in two ways. One, rate of loss of heat is directly proportional to excess of temperature provided excess is small. Next one, rate of fall of temperature या तो rate of cooling is directly proportional to excess of temperature provided excess is small. अब बेटा जब ये ग्राफ प्लॉट करूंगा ना मैं थीटा वर्सेस टी का, तो ये ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा, थीटा वर्सेस टी का ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा, थीटा वर्सेस टी, 0th मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। टेम्परेचर मैंने ये शुरू किया था 80 डिग्री सेल्सियस से। दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अब इसका मतलब समझो बेटा, स्टार्टिंग के फेस में ये एकदम फास्ट फॉल होगा, हर 1 मिनट के बाद 4 डिग्री कम हो रहा है, और लास्ट में ये सुपर स्लो हो जाएगा, 1 मिनट में हार्डली 0.1 डिग्री कम हो रहा है, इधर 4 डिग्री कम हो रहा है, इधर 0.1। दैट मींस दिस इज 40 टाइम्स हायर देन दिस, राइट? तो हम लोग ये ग्राफ का पार्ट ज्यादातर लेते नहीं है बिकॉज दिस इज वेरी फास्ट, और हम लोग ये भी नहीं लेते बिकॉज दिस इज वेरी स्लो, राइट? सो दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ, this portion of the graph, this one is called proper cooling curve, is called proper cooling curve. This is called Newton's cooling curve, and it is exponentially decaying graph. This is exponentially decreasing graph, decreasing graph. इसका मतलब बेटा ऐसा कुछ है कि मान लो आपको अचानक से लॉटरी लग गई 10 करोड़ की, आपके खुद के पैसे में, तो आपके पापा मम्मी के नहीं, पहली बार आपने लाइफ में 10 करोड़ देखा, एंड नाउ यू से कि दिस इज माय मनी, आई विल स्पेंड इट द वे आई वांट। 3-4 करोड़ का घर खरीद लिया, 1-8 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, ब्ला ब्ला ब्ला, एकदम 5-6 करोड़ तो एकदम पहले वीक में खर्चा कर ली, बिकॉज योर बेस लेवल वाज 10 करोड़। 10 दिन के बाद रियलाइज हुआ अभी मेरा बैंक बैलेंस 4 करोड़ ही है, योर स्पेंडिंग विल बिकम स्लो। 3 महीने के बाद पता चला बैंक बैलेंस 2 करोड़ ही है, योर स्पेंडिंग विल बिकम फर्दर स्लो, राइट? 6 महीने के बाद पता चला कि यार 50 लाख ही है, तो छोड़ यार अभी बचाते, खर्चा नहीं करते, और बाद में 6 महीने के बाद रियलाइज हुआ यार क्या पागलपन किया, पागल की तरह गाड़ी खरीद लिया, ये 10 करोड़ में म्यूचुअल फंड में डालता तो 1 साल के बाद 12 करोड़ होता, राइट? 5 साल के बाद 20 करोड़ होता, बाद में चाहिए तो इससे भी बड़ा घर ले सकता था। लॉजिक समझो? But the law was you have to lose, yes or no? And that is called exponential decay. एकदम अच्छे से समझा बेटा? So 5-6 very important points. First of all, this is applicable to ordinary body also. Water is not a black water. You are allowing water to cool. Next, ideally the temperature difference should be as small as possible. Next, temperature can be kept in Celsius only. Next, this is not fourth power law. This is single power law. Is that clear? ये रीडिंग समझा बेटा? ये रीडिंग आपके बुक में नहीं दिए होंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स है, ये रीडिंग नहीं दिए होंगे, लेकिन डायरेक्ट ग्राफ दिया होगा, लेकिन ग्राफ तो ही आपको समझ में आएगा अगर आपके सामने रीडिंग है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट वे ऑफ सेइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? स्टेटमेंट रेट ऑफ, इसमें सुनो बेटा, फ्लो भी नहीं बोलने का,
फ्लो भी नहीं बोलने का, कंपल्सरी लॉस बोलने का। रेट ऑफ एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, एक्सेस इज स्मॉल। नेक्स्ट, फॉल ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब आप ये लिखते हो तो आपका यूनिट है जूल पर सेकेंड, लेकिन जब आप ये लिखते हो तो आपका यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड। लेकिन ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट में भी होगा, बिकॉज हर एक सेकेंड के बाद रीडिंग लेना इम्पॉसिबल है। रीजन, मैं थर्मोमीटर पे फोकस करूं कि स्टॉपवॉच पे फोकस करूं, ये हो रहा है। हर सेकेंड के बाद अगर मैंने रीडिंग लिया तो, एंड दैट इज व्हाई दे विल नॉट इंसिस्ट कि आप अपना रीडिंग हर सेकेंड के बाद लो, मिनट के बाद लो, तो फिर आपका डेटा भी वो लोग मिनट में ही देंगे। लॉजिक समझा बेटा? सुपर डुपर श्योर। शॉर्टकट एकदम सिंपल, ध्यान से सुनो। ये टेबल वापस देखो बेटा एक बार। As time passes on, the cooling process is becoming slow कि fast? Very very important. इसके ऊपर से दोनों शॉर्टकट्स आते हैं। As time passes on, what is the shortcut? As time increases, can we say d theta by dt decreases? That means cooling process becomes slow. ये समझा बेटा? चलो अभी एग्जाम्पल नंबर वन, मैंने टेम्परेचर फॉल सेम रखा 60 to 55 एंड 55 to 50, तो क्या टाइम सेम लगेगा? नहीं लगेगा। अब ये डिसाइड करना है ज्यादा लगेगा कि कम। समझा बेटा? तो मैं इधर प्रिडिक्ट कर रहा था कि 60 to 55 में 2 मिनट लगा, तो क्या 55 to 50 में 2 मिनट लगेगा? आंसर इज नो, बिकॉज इट बिकम्स स्लो। तो फिर ज्यादा लगेगा कि कम? बिकॉज इट बिकम्स स्लो। स्लो मीन्स इट इज टेकिंग मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। रिजल्ट नंबर 2, मैंने बेटा टाइम सेम रखा। ये देख, ये रीडिंग मैंने 2 मिनट के बाद लिया 80 to 72 वाला, और ये रीडिंग भी मैंने 2 मिनट के बाद लिया 9 to 11 वाला। तो क्या मेरा टेम्परेचर फॉल सेम है? इधर 8 डिग्री का टेम्परेचर फॉल है और इधर सिर्फ 2.5। मतलब अवेलेबल टेम्परेचर जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं वो ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर फॉल कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा जैसे जैसे तेरे पैसे खर्चा हो रहे हैं, बाद में यू बिकम कंट्रोल्ड ना, तो तेरा खर्चा कम हो रहा है, मतलब तेरा सेविंग्स ज्यादा है। समझा बेटा? सुपर श्योर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आ जाओ। ये पीडीएफ बेटा मैं आज ही शेयर कर रहा हूँ, और ये एग्जांपल मैंने सेम नंबर्स के साथ दिया हुआ है। एकदम लास्ट पेज है ना आपका आईपैड नोट्स का, उसमें लिखा हुआ ही है शॉर्टकट्स। ओके, सो यू डोंट नीड टू कॉपी। यू आर ऑन पेज नंबर 102, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसमें बेटा लिख के रखो फॉर द शॉर्टकट्स, उधर लिख के रखो फॉर द शॉर्टकट्स एंड द ग्राफिकल बिहेवियर। मैं जो कमेंट लिखवाता हूं ध्यान से लिखो, फॉर द शॉर्टकट्स एंड द ग्राफिकल बिहेवियर एंड कंपैरिजन बिटवीन स्टीफन्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ, एंड comparison between Stephen's law and Newton's law. Refer iPad notes. बेटा ये मैं आज ही शेयर कर देता हूँ, आज इसका प्रिंट आउट निकाल लो, बिकॉज नाउ आई एम मीटिंग यू ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे के लिए मैं कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। रीजन नया टॉपिक शुरू हुआ है, अभी तक हम लोगों ने इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, बट ये पार्ट एकदम अच्छे से रिवाइज कर जाओ। iPad नोट्स में 2-3 चीजें नहीं हुई है अपनी। 1, फेरिस ब्लैक बॉडी। 2, एनर्जी वर्सेस लैम्बडा का ग्राफ, एंड 3, सोलार कांस्टेंट। जो नहीं हुआ है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ये नयन सर ने नहीं सिखाया। इज दैट वेरी क्लियर? श्योर? ये समझा बेटा सबको? वी स्टॉप हियर फॉर द